So today is our lecture number 2, as we already discussed in our physical class what is plant breeding and how what is the role of plant breeding, means what is the basic aim of plant breeding, why we breed the plant, and then we discuss the definition of plant breeding, how plant breeding is an art and how plant breeding is science, and how it emerged from the different levels, as in our past years in 19th centuries or before 19th centuries, when there is no concept of the scientist and the name of the plant breeding. Farmers usually select the best plant and grow in the next year, and from this selection the new varieties are evolved. And because as there is the famous quote, which is the survival of the fittest. So we said that the old farmers are the primary scientists of the plant breeding, because selection is the most important tool in the plant breeding. So these farmers select this plant in earlier histories, and then with time to time the knowledge is evolved. We know about the sex system in the plants, and then we cross the two different varieties, and this crossing is known as hybridization. So we hybridize these plants, and after this hybridization we are more developed toward the molecular biology or the molecular genetics, in which we just transfer a few genes into the required plant and we grow our the desired plant. This plant breeding is developed from step to step. uh, Today's we discuss about what is the role of genetics in plant breeding, how genetics play a role in the breeding of the plant. Actually, I have no slides for this course. This course is only in Word file, but due to the shortage of time, I don't create the PPTs. But if possible, I will manage this in next class. But you have to focus on this Word file. So, actually, genetics is the, as in previous course we studied that the genetics is basically the hereditary materials which is transferred from parents to the offsprings. So we know that if there is a rat always produce the rat, not the rabbit, or a cow produce the calves, not the fools or the lions, because their hereditary materials which are present in their germ cells, it is transferred in the next generations, and the next offsprings will always be produced similar to their parents. Like if we grow the wheat seed, the wheat plant is always emerged, not the maize or the rice is emerged. So, so we said that the offsprings are always resemble to their ancestors. Also, we discussed that the hereditary characters are controlled by genes. Like, if the dominant genes are present for a character, the character is like flower color. If we talk about the flower color, if the dominant genes are present, the flower color will be red. And if the recessive genes are present, the color will be the white. So we said that the genes are actual the controller of the trait expression, कि ट्रेड जो है उसने कैसे एक्सप्रेस होना है वो जीन्स पे है, कि उस ट्रेड के लिए कौन से जीन्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्योंकि ऐसे आपसे डिस्कस किया गया था कि समटाइम्स जो जीन्स हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, सॉरी जो करेक्टर्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, मींस कि वो एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहे होते हैं। लाइक आपकी प्लांट हाइट है, तो ये एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है। आपका जो आप ह्यूमंस में जो स्किन कलर है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट है, वेट एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है। तो ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं वो जीन्स पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितने जीन्स प्रेजेंट हैं और किन फॉर्म्स में प्रेजेंट है।
इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि एक भी एक करेक्टर का जो एक्सप्रेस होना है वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी जेनेटिक्स पे, कि उसकी जो जेनेटिक्स है उसमें किस तरह के जीन्स प्रेजेंट है। लाइक एक सिस्टिक फाइब्रोसिस है ह्यूमंस में, इसमें लंग्स की डिजीज हो जाती है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से। तो बेसिकली ये किस वजह से होती है, सिर्फ एक सिंगल म्यूटेशन हो जाती है एक जीन में। वो जो जीन है वो प्रोटीन एक कोड कर रही होती है जो क्लोराइड में इन्वॉल्व होती है। एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो आपके, उनमें इससे इस प्रोटीन ने सॉरी क्लोराइड ने सिक्रीट होना होता है। अगर उसे एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से ये प्रोटीन कोड हो रही है क्लोराइड, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। तो आपकी हेल्थ पे भी आपके जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। एक्चुअली ये चीज यहाँ पे डिस्क्राइब करने का एम यही है कि जो आपकी हेल्थ है उस पे आपके जीन्स का काफी सारा इफेक्ट है। अगर हम इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए काफी सारी इसेंशियल हो जाती है जब हम प्लांट्स की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी प्लांट की इंप्रूवमेंट का आपको एक टास्क दिया जाए तो सबसे पहला एम ये होता है कि आपके पास उसकी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन है या नहीं, उसके जीनोम का आपके पास नॉलेज है या नहीं। यानी आपको पता है कि उसके यील्ड के जो जीन्स हैं जो उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, और जो उसकी हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। जो इसमें बैरियर्स आ रहे हैं यील्ड को बढ़ाने के, लाइक डिजीजेज आ रही हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस आ रही हैं, लाइक एबायोटिक स्ट्रेसेस में आपकी वाटर स्ट्रेस आ रही है, आपको इस तरह के जितनी भी आपके पास स्ट्रेसेस आ रही हैं, क्या आपने वो जो स्ट्रेसेस हैं, क्या आप उन स्ट्रेसेस का आपके पास नॉलेज है कि उसके जो जीन्स हैं उनमें उन स्ट्रेसेस का कोई हल है या नहीं है। अगर तो आपके पास ये नॉलेज होगा तो वो आपके लिए उस प्लांट को ब्रीड करना काफी सारा इजीली होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक्स का प्लांट्स की ब्रीडिंग में। लाइक अगर हम आपको कभी इत्तेफाक हो आप गूगल पे जाएं और आप कौन या मेज का अबाव अजदाद देखें, उनके आप एंसेस्टर्स देखें, मेज के एंसेस्टर्स थे, मेज के एंसेस्टर थे टियोसेंटी। आप कभी गूगल पे जाएं वहां पे आप टियोसेंटी को सर्च करें तो आप टियोसेंटी को देखें और मेज को देखें तो आपको काफी क्लियर एक उनके दरमियान में डिफरेंस नजर आएगा टियोसेंटी में और मेज में। हालांकि जो आज की कल्टीवेटेड मेज है वो टियोसेंटी से ही ड्राइव की गई है। देन अगर आप लोग शुगर केन को देखते हैं, शुगर केन एक काफी हेल्दी और हमारे लिए शुगर प्रोडक्शन का सोर्स है पाकिस्तान में। तो अगर हम शुगर केन को देखें और आप शुगर केन के एंसेस्टर्स को देखें, शुगर केन के एंसेस्टर्स में आपके हमने काफी सारा देखा होगा कि अगर आप रोड्स की साइड्स पे वो एक बुश टाइप्स लगे होते हैं जिनको हम लोकल जबान में सरकंडा कहते हैं। तो वो जो सरकंडा है वो एक्चुअली एक प्रोजिनेटर है शुगर केन का। तो आप इन दोनों को देखें कि हमने इनको सिलेक्शन करवा 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 के उसको शुगर केन को किस कंडीशन में हमने अपने पास प्रिजर्व किया हुआ है। सो अब हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो एक भी ट्रेड के लिए अभी भी एक एनफ नहीं थी। हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज को यूज किया जिसमें म्यूटेशन करवाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाई। अब ये जो फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग है या म्यूटेशन है या हाइब्रिडाइजेशन है, ये वर्क कर रही होती है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर कि क्या आपके पास जेनेटिक प्रिंसिपल्स और प्लांट्स की जेनेटिक्स का नॉलेज है या नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो एक अप्लाइड साइंस है ऑन द जेनेटिक्स पे। मींस पहले जो हमने जेनेटिक्स पढ़ी वो हमारे पास एक नॉलेज था, हमने ये हमारे पास जीन्स हैं, ये ऐसे जीन्स एक्ट करते हैं और इनमें ये फिनोमेना होता है, को डोमिनेंस शो करते हैं, डोमिनेंस शो करते हैं। लेकिन हम जब प्लांट ब्रीडिंग में आते हैं तो ये प्लांट ब्रीडिंग हम उन जेनेटिक्स के रूल्स पे, उन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स पे हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं।
तो हम ये क्लियर कट में ये कह सकते हैं जो आपकी प्लांट ब्रीडिंग है वो अप्लाइड साइड है जेनेटिक्स की। आगे हर प्लांट को ब्रीड करने की एक स्ट्रेटजी होती है, एक वे होता है, स्ट्रेटजी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कि आपने प्लांट को ब्रीड कैसे करना है, आप उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। The most important things in this course is the strategy of plant breeding. And in again, I requested to you when you have to attempt the online paper, please read at least 5 to 10 times your question, understand it word by word, not in a single statement. You have to understand your question in word by word. Your all questions have answer in your notes, but you are not able to answer the every question in a single way. स्ट्रेटजी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी प्लांट को आप ब्रीड कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो आपके पास उसके मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल ट्रेड्स जो हैं, जो उसकी अडाप्टेशन हेल्थ को सूट करें, उनका आपके पास नॉलेज हो, वो आप आइडेंटिफाई करें कि एक प्लांट में कौन से मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल उसके कौन से ट्रेड्स हैं, यानी मॉर्फोलॉजी में उसकी क्या हाइट है, उसकी ग्रेन शील्ड जो है उसके लिए स्पाइक लेंथ क्या है, नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हैं, फिजियोलॉजी में उसके ऑयल कंटेंट्स कितने हैं, पैथोलॉजी में उसमें कौन सी डिजीजेज आ रही हैं, कौन से इंसेक्ट्स आ रहे हैं, और वो उन डिजीजेज और इंसेक्ट के अगेंस्ट कैसा रिएक्शन कर रहा है, या उस पर कौन सी स्ट्रेसेस आती हैं और वो उन स्ट्रेसेस में कैसा परफॉर्म करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि उसके फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कौन से ट्रेड्स हैं जो उसकी हेल्थ अडाप्टेशन पे इफेक्ट कर रहे हैं। देन अब आपके पास आपने सेकंड स्टेप में उसके लिए वो जो आप उस प्लांट में एक ट्रेड को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी अगर आपकी व्हीट है, आप कह रहे हैं कि ये जो व्हीट है ये काफी हाई यील्डेड तो है लेकिन इस पे डिसीजेस काफी आती हैं, इंसेक्ट काफी अटैक करते हैं, तो आपके पास सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि आप उन डिजीजेस और उन इंसेक्ट्स के लिए जीन्स को आइडेंटिफाई करें। आपके पास उनके लिहाज से जीन्स होने चाहिए। देन combine the genes from the desired trait into an improved cultivar through traditional breeding or the new biotechnical procedures. थर्ड स्टेप में आपके पास वो जीन्स भी आ गए हैं, अब आपने वो जो जीन्स हैं उनको अपने जो डिजायर्ड जो आपका वो इम्प्रूव, जिसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कल्टीवर या वैरायटी, उसमें आप उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कैसे करते हैं ये आप पे, आप या तो पुराने ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करें, यानी उसके क्रॉस करवाएं, हाइब्रिडाइजेशन करें, या आप न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर सिंपली उसमें से जो जीन्स है उनको मॉलिक्यूलर सीजर से कट करें और कट करने के बाद आप उसको प्लांट में इंसर्ट करवा दें। देन फोर्थ वन स्टेप क्या है, अब आपने उसको जो आपने कल्टीवर प्रिपेयर किया है, जो आपने कल्टीवर प्रिपेयर किया है उसमें जिसमें आपने जीन्स इंसर्ट करनी है, आपने उसको लोकल एनवायरनमेंट में लगाना है। लोकल एनवायरनमेंट में मींस कि जो लोकली कास्ट हो रही है, लाइक अगर हम यहाँ बात करते हैं, हम लोकली यहाँ पे फैसलाबाद 2008 पाकिस्तान की वैरायटी वीट की ज्यादातर कास्ट करते हैं, उजाला 2016 कर रहे हैं आजकल, तो पंजाब यारा वैसे बैन हो चुकी है लेकिन वो भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो नई बनाई है उसको हम लगाएंगे और इन 2000 फैसलाबाद 2008 या पंजाब यारा, इनसे हम उन दोनों वैरायटीज को कंपेयर करेंगे कि आइदर ये वैरायटीज वैसा परफॉर्म, ये जो हमने नई बनाई है ये उनसे अच्छा परफॉर्म कर भी रही है या नहीं। देन अगर तो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम उसको जो ब्रीडिंग लाइंस है उनको
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फार्मर्स में। ये बेसिक 5 स्टेप थे। प्लांट ब्रीडिंग की स्ट्रेटेजी थी कि एक प्लांट को आपने कैसे ब्रीड करना है। फर्स्ट वन, आप उस प्लांट जिसको आप ब्रीड करना चाह रहे हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल ईच एंड एवरी ट्रेट को आप स्टडी करेंगे। देन आप जो चीज उसमें इंप्रूव करना चाह रहे हैं उसके लिए जीन्स को सर्च आउट करेंगे। थर्ड पे आप सर्च आउट जीन्स को उस प्लांट में इंसर्ट करेंगे। फोर्थ पे आप अपने इम्प्रूव्ड कल्चर को लोकल इन्वायरमेंट में चेक करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को। और फिफ्थ पे आप उसको लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फार्मर्स में। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज थी प्लांट ब्रीडिंग की, कि प्लांट को कैसे ब्रीड किया जाता है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। So, have you done with your assignments?